Good morning, my dear students. Let us welcome this beautiful day. And for this, let us thank God for everything, whatever He has given to us. So let us join hands and seek His blessings by reciting this prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Children, today we are going to learn articles which are given in your book as lesson number 12. In this, we are going to learn what are articles and how can we use them in the sentences. So let us see what are articles. This is a drum and this is an elephant. An orange, a potato, a pineapple. This is a ball. Children, just now you have seen some objects. Did you notice one thing? That I have used article for each and every object. Like a ball, a drum, an orange. बेटा a और an क्या है? These are articles. और आपने एक चीज और नोटिस की? These all were singular. एक चीज थी. And these were common nouns. So let us study more about articles. We have three type of articles in English language. That is a, an, the, right? A और an क्या होते हैं बेटा? A और an are indefinite articles. Indefinite का मतलब वो things, वो nouns जो कि कोई particular नहीं है. And the is a definite article क्योंकि वो the हम सिर्फ किसी कुछ particular चीजों के आगे लगाते हैं. तो that is why the is the definite article. अब a और an हम कहाँ यूज करते हैं? A और an हम यूज करते हैं with common nouns, singular common nouns. अगर हम दोनों ही singular common nouns के आगे यूज करते हैं तो what is the difference between a और an? A और an में difference ये है बेटा, a is used before the noun which has a consonant noun which is singular, common and has consonant noun. और an हम कहाँ यूज करते हैं? The noun starting with vowel sound. The nouns which are common, singular and has vowel sound. Which of vowels you all know? We have got 5 types of vowels. They are A, E, I, O, U. हमारे पास 5 vowels हैं. हमारे
इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो ये 5 वॉवल्स हैं, इसके अलावा जो अल्फाबेट्स होते हैं लाइक ब, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। बेटा ये जो अल्फाबेट्स होते हैं जो वॉवल्स नहीं होते उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, राइट चिल्ड्रन? हाँ जी बेटा, अ और एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, क्योंकि हम कभी जनरल थिंग्स के बारे में जब बात करते हैं, when the noun is common and singular, जनरल बात करते हैं, then we use a और an. Suppose a teacher, a chalk, a duster. Now see, tortoise. अब tortoise में किसकी साउंड आ रही है? ट की साउंड आ रही है. T is not a vowel, तो हम क्या यूज करेंगे? This is common, this is singular, तो हम क्या यूज करेंगे? A tortoise. In the similar way, rabbit. How many rabbits are there? One. And this is a common noun, तो हम क्या यूज करेंगे? A rabbit. C. Keys. Are they singular? No, they are not singular. तो हम a keys नहीं बोलेंगे. हम a bunch of keys बोल सकते हैं क्योंकि bunch singular है और common है, लेकिन हम a keys नहीं बोलेंगे क्योंकि keys is plural, right? इसी तरह से बेटा हम लोग and कहाँ यूज करते हैं? and हम यूज करते हैं उन वर्ड्स के आगे जहां पर वॉवल साउंड होती है, राइट? ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड्स को. आई एम नॉट सेइंग द वर्ड स्टार्टिंग विद वॉवल और कॉन्सोनेंट. आई एम सेइंग द वर्ड्स विच आर हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड, विच आर हैविंग वॉवल साउंड. तो ध्यान, इस चीज का ध्यान आपने बहुत ज्यादा रखना है. क्योंकि कई बार होता है बेटा कि आपके पास वर्ड जो है वो वॉवल से शुरू होता है, बट देन तब भी हम लोग एन यूज नहीं करते, ठीक है? कई बार ऐसा होता है वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, बट तब भी हम उसके आगे अ यूज ना करके एन यूज करते हैं, राइट? तो साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ड कौन सी साउंड दे रहा है. मैंने एक बार भी बेटा ये नहीं बोला द वर्ड स्टार्टिंग विद अ, ई, आई, ओ, यू. I am saying the word starting with vowel sound, the word starting with consonant sound. So beta sound is very important. Now suppose this is, what is this? This is aeroplane. Aeroplane में किसकी आवाज आ रही है? अ की आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है ना, एरोप्लेन. तो हम इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन एरोप्लेन, ठीक है? तो अब कितने हैं ये? सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे? एन एरोप्लेन. इसी तरह से बेटा नाउअडेज इन द मार्केट यू कैन सी ऑरेंजेस. तो सिंगल ऑरेंज, ऑरेंज किससे स्टार्ट होता है? ओ से. तो क्या उसमें वॉवल साउंड आती है ओ की? यस, ऑरेंज. आई ईट एन ऑरेंज डेली. लेकिन अगर हम कहेंगे आई ईट ऑरेंजेस डेली, ऑरेंजेस प्लूरल हो गया, तब हम ऑरेंजेस के आगे अ या एन नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अ का मतलब ही होता है सिंगुलर. अ चॉक, अ डस्टर मीन्स सिंगुलर, राइट? तो हम जब नाउन सिंगुलर होता है तब हम उसके आगे अ और एन यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साउंड, कि वेदर इट इज हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड और अ वॉवल साउंड. हाँ जी बेटा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं which start with a consonant but they don't have the consonant sound, and few words are there which start with a vowel but they don't have a vowel sound. तो उस केस में हम क्या करते हैं? For example, the word is horse. horse में ह की आवाज आ रही है, राइट? तो हम क्या यूज करेंगे? a horse. But few words are there like honest, honorable, ठीक है? honest word है,
ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ऑनेस्ट में क्या एच की साउंड आ रही है? नो, एच की साउंड नहीं आ रही है, बल्कि एच साइलेंट है। किसकी साउंड आ रही है? ओ की साउंड आ रही है। ओ इज अ वोवल साउंड, राइट? तो हम क्या कहेंगे? एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह से आर, द ट्रेन केम डैश आर लेट। क्या आर में एच की साउंड आ रही है? नो। किसकी साउंड आ रही है? अगेन ओ की, एंड ओ हैज अ वोवल साउंड। तो हम क्या कहेंगे? द ट्रेन केम एन आर लेट, राइट? अब आपके शहर कुरुक्षेत्र में किस चीज के लिए मोस्ट फेमस है? वन इज ब्रह्म सरोवर, अनदर इज यूनिवर्सिटी, राइट? यूनिवर्सिटी किससे शुरू होता है बेटा? यू से। बट क्या उसमें यू की वोवल साउंड आ रही है? यूनिवर्सिटी। अगर हम यूनिवर्सिटी को लें, क्या यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है? नो। इसमें जो साउंड आ रही है वो य की आ रही है, य की साउंड है, वाई और यू की। तो देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन आर सिटी। ठीक है बेटा? तो हम यूनिवर्सिटी में जहां साउंड, मैंने आपको अभी क्या बोला कि हमें साउंड देखनी है। इसी तरह से MP, MP वर्ड हैव यू हर्ड? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब MP हम कभी भी MP नहीं बोलते, EN की साउंड आती है। अगेन देखिए बेटा, E क्या है? वोवल, वोवल साउंड दे रहे हैं ना, MP। तो हम क्या यूज करेंगे? He is an MP, वो एक MP है, an MP, राइट? इसी तरह से बेटा, अगर मैं आपको कहूं I have a 1 rupee coin, 1 रुपी। अब 1 किससे शुरू होता है? ओ से शुरू होता है। बट क्या इसमें ओ की साउंड आ रही है? नो। इसमें किसकी साउंड आ रही है? व की। तो व क्या वोवल है? नो। तो हम क्या कहेंगे? I have a 1 rupee coin. So now you are very much clear, I think, कि जहां पर साउंड की बात होती है तो हमें साउंड देखनी है कि whether the word is starting with a consonant sound। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट हो रहे तो वी विल यूज अ, अगर वोवल साउंड से वर्ड स्टार्ट हो रहे वी विल यूज एन। ठीक है? Let us see children how much we have understood. Let us solve worksheet number 1. Help Freddy the Frog to fill in the blanks with a or an. The first one is Tina is dash engineer। देखो बेटा, इंजीनियर ई से शुरू हो रहा है, ई, और इसमें वोवल साउंड ई की ही आ रही है, इंजीनियर। तो हम क्या यूज करेंगे? एन। टीना इज एन इंजीनियर। लुक फॉर द सेकेंड सेंटेंस, व्हाट डैश प्लेजेंट डे। तो देखिए, प्लेजेंट पी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या कहेंगे? व्हाट अ प्लेजेंट डे। देखिए, डे बेटा सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है और कॉमन है। ग्रैनी टोल्ड अस डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। कैसी स्टोरी है? इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग में बेटा आई की वोवल साउंड आ रही है, तो हम क्या करेंगे? ग्रैनी टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग story. Mother gave us dash excellent idea for our science project. देखिए बेटा, excellent ई की साउंड है and that is vowel sound. Idea is singular, single idea दिया ना, तो mother gave us an excellent idea for our science project. Now बेटा, rest you will try.
So, children, let us learn some new vocabulary words. Children, let us learn some new words starting with letter Q. First word is quilt. Q-U-I-L-T, quilt. Beta, nowadays the winter season is going to start and you will take quilts to save yourself from the cold. Yani quilt yani razai. Second word is Q. Q-U-E-U-E. Q yani कतार यानी जब आप एक लाइन में खड़े होते हैं that is called queue. The third word is quarter. Q-U-A-R-T-E-R. Quarter means 1/4 part of anything. किसी भी चीज का चौथाई हिस्सा. That is called quarter. The fourth word is quench. Q-U-E-N-C-H. Quench यानी अपनी प्यास बुझाना. That is called quench. Now fifth word is quiz. Q-U-I-J. Quiz means to when you are to answer some questions. A game when you answer some questions, that is called quiz. Children, your homework is that you will do worksheet number 1 of lesson 12 in your grammar book and you will write vocabulary words in your English notebook. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.